Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope all of you are good at your homes. I welcome you all to the class of physics. And here is your teacher Saima Muzammil with lecture number 30 from unit number 14, that is electromagnetic induction. The content of today's lesson are: we are going to have a recap of electromagnetic induction EMI. Then I will explain Lenz's law to you. Then we will learn about right hand rule. Next I will give you an explanation of the Lenz's law. Then we will find out how the Lenz's law is in accordance with the law of conservation of energy. And in the end we will learn some applications of Lenz's law. This was all about the content of today's lesson. Before going to start Lenz's law, we have a brief recap of electromagnetic induction. You read about electromagnetic induction in your last lectures. Before starting the electromagnetic induction, you must have a clear concept of magnetic flux. And you know what is magnetic flux. You already are familiar with the magnetic flux that is shown by the Greek letter phi, and phi is B dot A. It is B dot A, which is opened as BA cos of theta. And we have also learned different conditions for the magnetic flux, for the maximum magnetic flux and the minimum magnetic flux. If you have a clear concept of magnetic flux, Faraday's experiment was about studying magnetic flux. In his experiment, he found out that a steady magnetic flux or the field produces no current. That means if the magnetic flux is steady, that means it is constant, it is not changing with respect to time, there is no current or EMF induced. This was the Faraday's experiment. So he concluded in this experiment that a changing magnetic flux, he find out that a changing magnetic flux or the field can produce an electric current, that is called the induced current. Then he deduced his law, that is called the Faraday's law. You read about, or you are familiar with the Faraday's law in your last lecture, that says that the magnitude of the induced EMF is proportional to the rate of change of magnetic flux. That means if the magnetic flux is changing, then there will be induced EMF, and it is directly proportional to the rate of change. As you can see in this figure, here it is the mathematical form of Faraday's law. आपने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ी थी. It is the induced EMF is equals to minus delta phi by delta t minus the rate of change of magnetic flux. मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या मतलब है और इससे EMF कैसे इंड्यूस्ड होती है. लेकिन साथ में आपको ये भी बताया था कि हेयर द माइनस साइन विच यू कैन सी इन दिस फिगर, ये आपको माइनस का साइन नज़र आ रहा है. इसको मैंने थोड़ी सी आपको हिंट दी थी कि दैट माइनस साइन इंडिकेट्स और दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लेंज़ लॉ. बेसिकली दिस माइनस साइन इज एक्सप्लेन्ड बाय द लेंज़ लॉ. ओके, दिस माइनस साइन डील्स विद द लेंज़ लॉ. नाउ व्हाट द लेंज़ लॉ सेज, जो कि आज का हमारा टॉपिक है. He says an induced electric current always flows in such a direction that is opposes the changes producing it. ये इस लेक्चर में, जो आज की आपका लेक्चर है, उसमें मैनी टाइम्स मैंने ये लॉ जो है रिपीट किया है सो दैट कि आपको इसकी स्टेटमेंट अच्छे तरीके से मेमोराइज हो जाए. लेंज़ लॉ क्या कहता है कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इंड्यूस्ड EMF बिकॉज ऑफ द चेंजिंग फ्लक्स, दैट इज़ ऑलवेज इन सच अ डायरेक्शन, वो इस तरह से होता है सो दैट इट अपोज अ चेंज प्रोड्यूसिंग इट. हमेशा खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पर ऐसे होगा कि जो करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट, वो हमेशा उसको जो
फैक्टर कॉज कर रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो चीज़ उसको कॉज कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। दैट इज़ बेसिकली द लेंज़ेस लॉ। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में कि कैसे जो है वो सिस्टमेटिकली जो है हम लेंज़ेस लॉ तक आए हैं। फर्स्ट वी हैव डिफाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स। जब उसका कॉन्सेप्ट हो गया तो हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फैराडेज ने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स में उसको ऑब्जर्व किया। देन ही डिड्यूस अ लॉ, और उस लॉ के अंदर जो माइनस साइन था वो लेंस ने जो है ना एक्सप्लेन किया। सो वी हैव अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ लेंज़ेस लॉ। हेनरिच F.E. Lenz was the scientist who deduced this law. He was a Russian physicist from 1804 to 1865. In 1837, he deduced, or he launches his law that says there is an induced current in a closed conducting loop. He says in a closed conducting loop, if and only if, that means this condition must be achieved, the magnetic flux through the loop is changing. As I already told you, if there is magnetic flux change, then there will be induced EMF. Okay, and for that induced EMF there must be some closed loop, closed surface. The direction of the induced current is such that the induced magnetic field always opposes a change in the flux. This is the particular statement of the Lenz law, और आपको अच्छे तरीके से ये जो है वो याद होनी चाहिए। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स आई विल एक्सप्लेन लेंज़ेस लॉ के इसका मतलब क्या है विद डिफरेंट एग्जांपल्स, डिफरेंट फिगर्स। सो अभी जो है आप इसको देख सकते हैं कि लेंस हमें क्या कहता है। देयर इज़ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज कंडक्टिंग लूप इफ़ एंड ओनली इफ़ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज़ चेंजिंग, the direction of the induced current is such that the induced magnetic field always opposes a change in the flux. And you are already familiar with all the terminologies that are used in this law. आप हर चीज़ से जो है वो familiar हैं। induced current भी आपको पता है, you must know the conducting loop क्या होता है, magnetic flux क्या होता है, और जो है इसके अलावा हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं है जो इसमें इस्तेमाल हुई है। So you are familiar with all the terminologies in this law. Now what is Lenz law? The induced B, that means magnetic field in a loop of a wire will oppose the change in magnetic flux through the loop. अब आपने एक लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है, ठीक है, खुद इंड्यूस की है, तो वो आपने जब इंड्यूस की है तो वो क्या कैसे बिहेव करती है, इट विल ऑलवेज अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। एंड यू नो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस मैग्नेटिक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज, वो जो उसको प्रोड्यूस कर रही है चीज़ मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको ये फील्ड क्या करेगी, अपोज करेगी। दैट इज़ बेसिकली द लेंज़ेस लॉ। इसीलिए हम जो है माइनस का साइन पुट करते हैं, बिकॉज इट शोज द ऑपोजिशन। नाउ देयर आर टू केसेस। अब होगा क्या, इफ़ यू ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। अब देखें फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, थ्रू द लूप द इंड्यूस्ड फील्ड विल अपोज द इंक्रीज़। तो जो फील्ड है बी जो प्रोड्यूस होगी वो इस तरह से इन सच अ वे प्रोड्यूस होगी सो दैट इट विल अपोज द इंक्रीज। एज यू कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है इस फिगर में, यू आर मूविंग मैग्नेट टूवर्ड्स द लूप। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप इसको लूप की तरफ लेकर जा रहे हैं। सो यू आर इंक्रीजिंग, ये क्लोज लूप है, आपको नज़र आ रहा है ये लूप जो है वो क्या है, क्लोज लूप है, और इसको जो है वो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, क्लोज लूप है, इसमें से आप मैग्नेट को इसके करीब लेके जा रहे हैं। सो यू आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। एज यू आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, सो जो लूप है उसके अंदर ऑब्वियसली देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF एंड देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। बट व्हाट इज़ द डायरेक्शन? लेंज़ेस लॉ सेज इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी सच दैट इट अपोज द चेंज। ये इस तरह से बन जाएगी कि अब अपोज कैसे कर सकती है चेंज को। एज यू कैन सी इन द फिगर, हेयर इज़ द नॉर्थ पोल फेसिंग द लूप। तो ये कैसे अपोज करेगी, अगर ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, सेम पोल बन जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। मैग्नेट करीब जा रहा है, लूप उसको दूर भगाएगा, सो वो क्या बन जाएगा, लूप की ये वाली साइड जो है वो नॉर्थ पोल बन जाएगी। मैं आपको ये आगे एक्सप्लेन करूँगी।
बट यहाँ तक इतना काफ़ी है. नाउ फॉर द सेकेंड केस, एज यू कैन सी, इफ़ यू ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स थ्रू अ लूप, as you can see in this figure here, the loop is moving away, sorry, the magnet is moving away. मैग्नेट जो है वो दूर जा रहा है, एंड नॉर्थ पोल इज़ फेसिंग द लूप. सो द इंड्यूस्ड फील्ड विल रिप्लेस दैट डिक्रीज. अब लूप जो है वो क्या कर रहा है, उसमें से फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको कैसे रिप्लेस करेगा कि वो इस डायरेक्शन में करंट को अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, सो दैट कि ये मैग्नेट को अपनी तरफ खींचेगा. फ्लक्स जो डिक्रीज़ हो रहा है उसको अपोज करेगा, उसके ऑपोजिट एक्ट करेगा. सो इसकी ये साइड क्या बन जाएगी, ये वाली जो साइड है जो फेस कर रही है मैग्नेट को, इट विल बिकम साउथ पोल. ओके, होपफुली आपको कुछ समझ आ गई होगी. आगे मैं मज़ीद जो है एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करूँगी, होपफुली आपको बेहतर समझ आ जाएगी. नाउ लेंज़ेज़ लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ and current resulting from the electromagnetic induction. The law provides a physical interpretation of the choice of sign in Faraday's law of induction. तो Faraday's law of induction जो है उसमें साइन की जो चॉइस है वो उसकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या देता है, Lenz's law, indicating that the induced EMF and the change in flux have opposite sign. That is very important. Here he says the induced EMF and the change in flux, they have the opposite sign. चेंज इन फ्लक्स अगर पॉजिटिव है या एक डायरेक्शन में है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करेगी. एज यू कैन सी इन दिस, हेयर इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म एंड दिस माइनस साइन एक्सप्लेन्स द लेंज़ेज़ लॉ. इन द फिगर अबव, आप ऊपर देख सकते हैं इस फिगर में भी, वी सी दैट the direction of the current changes. Lenz's law helps us to determine the direction of that current. As you can see in the figure A, B, C and D. In this figure A, the current is anti-clockwise. B में वो clockwise हो जाता है, C में again clockwise रहता है और D में फिर क्या हो जाता है, anti-clockwise. So ये एक ही चीज़ है. As you can see, आप जो दो पहली दो फिगर्स हैं, यू कैन सी द फर्स्ट टू फिगर्स, इसमें आप देख सकते हैं दो फिगर्स में कि आपके पास जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल जो है वो लूप की तरफ है, और एक केस में मैग्नेट इज़ कमिंग टुवर्ड्स द लूप, फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, और फॉर द सेकंड केस इट इज़ मूविंग अवे. नाउ फॉर द नेक्स्ट केस, एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इस केस में साउथ पोल इज़ फेसिंग द लूप. फॉर द फर्स्ट केस इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द लूप. For the second case, it is moving away from the loop. So all these movements have some meanings because these movements control the direction of the induced current. Okay, you must notice here for the first case A, the current is clockwise. Same loop में अगर magnet opposite direction में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में एंटी क्लॉकवाइज था, सेकेंड में क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज. सेम इज द केस विद द सेकेंड फिगर. ये आपको चीज़ जो है वो आहिस्ता से नेक्स्ट स्लाइड्स में एक्सप्लेन. नाउ व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, एंड नाउ व्हाई इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज समटाइम्स क्लॉकवाइज, sometimes anti-clockwise. Okay, there are some reasons because Lenz law explains this direction of induced current. In both the cases in the figures, magnet moves against a force. अब फर्स्ट केस में मैग्नेट की मूवमेंट है टुवर्ड्स राइट और सेकंड केस में मैग्नेट की मूवमेंट है टुवर्ड्स लेफ्ट. एज यू कैन सी इन द फिगर, when the magnet is moving towards right, as for the first case, work is done during the motion and it is transferred as electrical energy. वर्क कैसे हो रहा है, बिकॉज यू आर मूविंग और यू आर पुशिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. आप मैकेनिकल एनर्जी जो है वर्क फॉर्म कर रहे हो मैग्नेट के ऊपर, एंड दैट वर्क इज़ बेसिकली ट्रांसफरिंग इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो देयर इज सम गेन इन एनर्जी. As you can see in the figure, I will show it to you with the help of an arrow. You are moving the magnet towards right and the north pole here
The north pole is facing the coil. Magnetic flux is increasing towards the coil. So automatically what will happen, the end of the coil here, the end of the coil that is facing the magnet's north pole will become the north pole. Why it will become the north pole? Because it will try to oppose the change. और वो कैसे अपोज कर सकता है? इट विल पुश द मैग्नेट बैकवर्ड. ये मैग्नेट को क्या करेगा? बैकवर्ड पुश करेगा, लाइक दिस. ओके. सो फॉर द नेक्स्ट केस you are taking the magnet away from the coil. What will happen? You are decreasing the magnetic flux. As you are decreasing the magnetic flux, according to Lenz's law, the face of the coil that is facing the north pole, the coil face that is facing the north pole will become the south. Because you are decreasing, वो उसकी opposite काम करेगा. It will try to increase. कैसे increase करेगा? It will pull the magnet towards itself. Okay. तो इस तरह से जो है वो लेंज़ेस लॉ हमें एक्सप्लेन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन व्हाट कैन बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. Induced current I always flows to oppose the movement which started it. That is the conclusion from these two examples. Now, before explaining the Lenz's law with other examples, I will like to explain you right hand rule, and you are familiar with the right hand rule. It's very simple. The right hand rule says if you wrap your fingers around the coil in the direction of the current, as you can see this hand, ये देखें करंट जो है वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने जो है वो उसी डायरेक्शन में अपने आप फिंगर्स को क्या कर देना है? कर्ल कर देना है. ठीक है. योर थंब विल पॉइंट दी नॉर्थ. तो आपने अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में जो है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है. ओके. यू कैन सी इन दिस फिगर हेयर इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. तो आपने अभी बेशक आप अपने हाथ को अभी इसी डायरेक्शन में रखें एंड यू ग्रास्प द कॉइल एंड योर फिंगर्स मस्ट बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. योर थंब इज़ पॉइंटिंग अपवर्ड फेस जो इस कॉइल का है, as you can see this face, this will become north, and obviously if this is north, this end will become the south pole. एक एंड नॉर्थ पोल बनता है तो दूसरा क्या बन जाता है? साउथ पोल बन जाता है. ओके. इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो ये राइट हैंड रूल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल है, जो आपको ये बताता है कि किस मूवमेंट ऑफ करंट की वजह से कौन सा एंड नॉर्थ पोल बना है, कौन सा जो है वो साउथ पोल बन गया. Now here is an example. There is an induced current in a, ये आपको फिर Lenz's law बता रहा है कि in a closed conducting loop if and only if the magnetic flux through the loop is changing. The direction of the induced current is such that the induced magnetic field always opposes a change in the flux. Now here is an example. A bar magnet pushed into a loop increases the flux, जो आपको पीछे एग्जाम्पल में मैंने बताया, through the loop and induces a current to flow. ये आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये जो मैग्नेट है, as you can see in the figure, this magnet is moving towards the coil. इन जा रहा है. ठीक है. कॉइल के इनसाइड जा रहा है. दैट मीन्स कि ये कॉइल के इनसाइड जाके कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को इन्हांस कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है. तो क्वेश्चन क्या है आपसे? क्वेश्चन सेज डज द इंड्यूस्ड करंट फ्लो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज. आप अपने जहन में सोचें कि आंसर क्या होगा इसका, कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा लूप में या एंटी क्लॉकवाइज. अभी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपने जो है वो ये देखना है कि इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज होगा या ये जो है क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज. आप सोचें और इसका जवाब अपने जहन में सोचें. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका आंसर देने जा रही हूँ. Again, it is Lenz's law. There is an induced current in a closed conducting loop if and only if the magnetic flux through the loop is changing. The direction of the induced current is such that the induced magnetic field always opposes a change in the flux. The flux through the loop increases downward as a magnet approaches.
The loop needs to generate an upward pointing magnetic field to oppose a change in the flux. यानी अब लूप ने क्या करना है कि एक ऐसी फील्ड बनानी है जो कि अपर मैग्नेट है उसको वो इनवर्ड पुश हो रहा है ना, तो उसको आउटवर्ड धक्का दे। तो कैसे दे सकता है? अगर कॉइल का ये एंड जो फेस कर रहा है, ये वाला एंड, दिस एंड, मैं एरो से आपको दिखा देती हूँ, ये ऊपर वाला एंड, ठीक है। कॉइल के दो फेसेस हैं ना, एक अपवर्ड फेस है, एक डाउनवर्ड फेस। अगर अपवर्ड फेस से जो करंट है वो किस तरह से मूव करे, अभी आपको बताया कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो अपवर्ड फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इसमें भी क्लॉक जो करंट होगा वो क्या होगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, द करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो आप बताइए ये कौन सा पोल बनेगा, इट विल बिकम विच पोल, it will become the north pole, and north pole will repel the north pole of the magnet. Is that clear to you? According to the right hand rule, a current is needed to induce an upward pointing magnetic field. Which type of current? Counterclockwise. CCW means here, this CCW means the counterclockwise current. तो काउंटर क्लॉकवाइज करंट जो है वो क्या करेगा, इस कॉइल के अप फेस को नॉर्थ बना देगा, और उससे क्या होगा, हमें जो इंक्रीज़ मिल रहा है फ्लक्स का, उसके ऑपोजिट एक फोर्स जनरेट हो जाएगी। ओके, होपफुली आपको ये समझ आ गया है। नेक्स्ट में आपके पास एक और एग्जांपल है इसी के ऑपोजिट। इफ़ द फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट इज़ ऑलरेडी इन द लूप, यानी ऑलरेडी जो है वो एक फील्ड मौजूद है, एंड द मैग्नेट इज़ रिमूव्ड, आप उसको बाहर लेकर जा रहे हैं। द इंड्यूस्ड करंट इज़ इन द डायरेक्शन दैट ट्राइज टू कीप द फील्ड कांस्टेंट। अब नाउ द मैग्नेट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द लूप। फर्स्ट केस में टुवर्ड्स द लूप था, इन आ रहा था, अब बार मैग्नेट जो है वो आउट मूव कर रहा है, अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो उसको कैसे, जो कॉइल है अपनी तरफ कैसे लेके आएगी, द अपवर्ड फेस विल बिकम विच पोल, आप गैस करें, इट विल बिकम, yes, it will become the south pole, because south and north attract each other. Opposite pole जो हैं एक दूसरे को attract करते हैं. In the next slide we have answer to it. Downward flux is decreasing. A downward pointing field is needed to oppose the change. A downward pointing field is induced by a clockwise current. CW means clockwise current. और अब देखें coil का upward face क्या बन जाएगा, ये वाला जो face है, this face will become, मैं आपको arrow के साथ दिखाती हूँ, I will show it to you by this. ये जो ऊपर वाला face है, ये ऊपर वाला, it will become the which pole, it will become the south pole. Okay. सो लेंज़ेस लॉ हमें ये बताते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होता है. इट ऑलवेज अपोजेज अ चेंज दैट इज कॉजिंग इट. नाउ हियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लेंज़ेस लॉ. एज यू कैन सी, हमने जो भी एग्जांपल्स देखी उसमें हमने देखा वी आर डूइंग सम मैकेनिकल वर्क एट दैट मैकेनिकल वर्क इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दैट मीन्स यू आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, आप क्या करें, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. बट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कहता है ना कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएट नॉर इट बी डिस्ट्रॉयड. तो यहाँ पर हम कैसे देख सकते हैं कि ये लेंज़ेस लॉ क्या इन अकॉर्डेंस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. येस, इट इज़ 100% इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हाउ, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. When a flux change induces a current in a conductor, the induced current produces a magnetic field that opposes a change in the flux that caused the current. Now imagine that the motion of the magnet as shown resulted in the end of the solenoid becoming a north pole. अभी आपने देखा, हमने पिछले केस में भी देखा कि whenever this magnet is moving towards the solenoid, its end if it is south sorry, ये आपको नज़र आ रहा है कि ये साउथ पोल है. ठीक है, तो अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपके ख्याल में ये वाला जो एंड है इसको क्या होना चाहिए, इसको साउथ बनना चाहिए ना, टू पुश इट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बट सपोज कि ये साउथ नहीं बनता बल्कि ये क्या बन जाता है, नॉर्थ. व्हाट विल हैपन, दिस वुड प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द मैग्नेट कॉजिंग इट टू एक्सेलरेट टुवर्ड्स द सोलेनॉइड. ऑब्वियसली अगर ये नॉर्थ पोल बन जाएगा तो मैग्नेट एकदम से खिंचा आएगा किसकी तरफ, सोलेनॉइड की तरफ. That means there is an excessive acceleration produced in the magnet. Now what happens? This would increase the rate of flux change through the solenoid, producing a larger current and solenoid field.
causing the magnet to accelerate more and more. This feedback cycle would result in an increase in the kinetic energy of the magnet and the current in the solenoid that require no further input of energy. And there is an increase and increase and increase of energy. This violates the law of conservation of energy. सो अगर हम देखें तो ये वैसे भी वायलेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, और लेंज़ेज लॉ इन अकॉर्डेंस है, क्योंकि वो ये कहता है कि नॉर्थ पोल नहीं बनेगा बल्कि सोलेनॉइड का ये एंड साउथ पोल बन जाएगा. ओके, इट इज़ देयरफॉर इम्पॉसिबल. लेंज़ेज लॉ इज़ ए स्पेशल एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो समटाइम्स बोर्ड के, बल्कि बहुत दफ़ा बोर्ड में एग्जाम में ये आता है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस लेंज़ेज लॉ इज़ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यू विल ऑलवेज एक्सप्लेन दिस पॉइंट बाय दिस example. This is a very good example and very simple example of Lenz's law. Okay, now here I have an example. Here I have an example for you to understand this concept. आप इस फिगर में देखिएगा, ये एक एनिमेटेड जो है वो फिगर है. लेट्स एग्जामिन अ कॉपर रिंग. When a magnet moves towards a ring, the magnetic flux B cross the ring grows, as you can see. जो मूव करता है राइट साइड पे. इन दिस सिचुएशन अ करंट आई इज जनरेटेड अलोंग द रिंग. आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. दिस करंट इज टर्न जनरेट्स अ न्यू मैग्नेटिक फील्ड. ये एक और मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा दैट अपोजेस टू इंक्रीज द ऑफ द इनकमिंग मैग्नेटिक फील्ड, thus generating a force that repels the approach of the incoming magnet. ये एग्जांपल जो है आपको इसी तरह से बताती है कि आई हैव अनदर एग्जांपल. तो आप इसको दोबारा से देख सकते हैं कि ये जो है इस साइड पे अप्रोच कर रहा है कॉइल को मैग्नेट, तो उसकी वजह से इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज करंट जनरेट हो जाएगा दैट विल प्रोड्यूस अ नॉर्थ पोल ओवर हियर एंड दैट नॉर्थ पोल विल रिपेल द मैग्नेट बैकवर्ड डायरेक्शन. तो वही बातें जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वही इसी एनिमेटेड जो है स्लाइड में एक्सप्लेन हो रही है. ठीक है, आई हैव एन अनदर एग्जांपल. लेंज़ेज लॉ चूँकि जो है वो लॉ सिंपल है लेकिन ये यूजुअली एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन होता है. सो आई हैव रिटन हेयर मैनी एग्जांपल्स, और मैं आपको बहुत सारी स्लाइड्स में एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आई हैव अनदर एग्जांपल दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. एक एक्सपेरिमेंट है. यू कैन सी हेयर इट इज़ अ क्लोज्ड सर्किट. ठीक है, जिसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं. क्या कहते हैं आपको देखिए, मतलब स्विच इज़ क्लोज्ड. अगर स्विच क्लोज करते हैं आप देखते हैं तो कैन जो है वो क्या हो रहा है, इनवर्ड पुश हो रहा है. नाउ व्हाई दिस कैन इज पुश्ड इनवर्ड? व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड करंट पासिस थ्रू द सोलेनॉइड. ऑब्वियसली करंट पास हो रहा है, बैटरी लगी हुई है. अ करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज इंड्यूस्ड इन द कैन. अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज लॉ कैन में जो है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा. इसकी मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो करंट इंड्यूस करेगी. यू कैन सी इन द फिगर, आप देख सकते हैं फिगर में कि कैन का जो है वो करंट इस डायरेक्शन में है एंटी क्लॉकवाइज, और जो सोलेनॉइड है उसका करंट जो है वो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. द टू करंट्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लीडिंग द कैन टू क्रश. तो कैन जो है वो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है, दब जाता है. आई हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ लेंज़ेज लॉ, जो कि आपकी बुक्स में अक्सर जो है क्वेश्चन भी आता है. व्हाट जस्ट हैपन. यहाँ पर क्या है, वी हैव अ मैग्नेट. आप देख सकते हैं एक सोलेनॉइड है, ठीक है, जिसका एक एंड नॉर्थ पोल है और एक जो है वो डाउनवर्ड एंड जो है वो क्या हो गया, साउथ पोल. नाउ वी हैव अ रिंग ओवर हेयर. रिंग जो है इसकी तरफ मूव कर रही है. नाउ व्हाट जस्ट हैपन. हाउ ऑफन डज दिस अकर्स. कब होता है. वी हैव एन ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू द कॉइल. जो आपको कॉइल नज़र आ रही है उसके अंदर क्या ऑल्टरनेटिंग करंट, आप देख सकते हैं बैटरी लगी हुई है, ऑल्टरनेटिंग करंट है इन द कॉइल. व्हाट हैपन्स टू द आयरन कोर. जो आयरन कोर है उसके साथ क्या होता है, जो कि सोलेनॉइड के अंदर है. व्हाट हैपन्स टू द आयरन कोर. व्हाट विल हैपन टू द रिंग. और रिंग जो इसके ऊपर है, जो कि लूजली फिटिंग मेटल रिंग है, उसके साथ क्या होगा, एज यू कैन सी इन द फिगर. द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द करंट इंड्यूसेस अ करंट इन द मेटल रिंग. चूँकि जो कॉइल है उसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, इट इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम, ऑल्टरनेट कर रहा है. उसकी वजह से क्या होगा, एक चेंज इन करंट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, मेटल रिंग में फ्लक्स चेंज हो रहा है ना. लेंज़ेज लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन द रिंग अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल एंड फोर्सेस द रिंग्स टू फ्लाई अवे. तो
तो ये रिंग जो है वो कभी भी जो सोलेनॉइड उसकी तरफ नहीं आएगी बल्कि दूर चली जाएगी। आप जब इसको रिंग को इस सोलेनॉइड की तरफ लेकर आएंगे, ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जो रिंग है उसका मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ, रिंग का जो डाउनवर्ड एंड है वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, और जो उसका अपवर्ड एंड है वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। और ये साउथ और साउथ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो मैग्नेटिक रिंग है वो कभी भी सोलेनॉइड की तरफ नहीं आएगी बल्कि उसकी तरफ से ऊपर जो है वो उछल के दूर चली जाएगी। इट विल बी पुश्ड अवे। दिस इज another example of Lenz's law. Now here I have a very interesting example of magnetic induction that results in Lenz's law, that is a magnetic levitation maglev trains. ये जो ट्रेन्स हैं ये क्या हैं, ये ट्रैक के ऊपर नहीं चलती बल्कि ये कुछ ट्रैक से ऊपर होती हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना की बेसिस पे जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जिनकी बेसिस पे ये जो है वो हाई स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं। बिकॉज बिटवीन द ट्रैक एंड देयर इज़ एन एयर कुशन होता है जिससे फ्रिक्शन कम होती है, एंड दे कैन अटेन अ हायर स्पीड। ओके, दीज आर द हाइएस्ट स्पीड कंटेनिंग ट्रेन्स, मैगलेव ट्रेन्स, मैग्नेटिक लेविएशन ट्रेन्स। इंड्यूस सरफेस एडी करंट्स प्रोड्यूस फील्ड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दूसरी क्या चीज़ इसमें होती है, रिपल्स मैग्नेट होते हैं, और दैट लेविएट्स द ट्रेन। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये मैंने आपको एक इसकी डायग्राम भी दिखाई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है वो नॉर्थ पोल है जो कि डाउनवर्ड है, एडी करंट्स हैं, रेल जो ट्रैक है उसके ऊपर एडी करंट्स हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि इनमें भी एक जो है वो पोल्स बन जाते हैं, और कौन सा पोल बन जाएगा, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल रिपेल दी ट्रेन, और वो क्या रहती है उसके साथ कभी भी टच नहीं कर पाती, वो उसके ऊपर ही हवा में उड़ती हुई जाती है। थोड़ा सा गैप होता है बिटवीन द ट्रैक एंड द ट्रेन, एयर कुशन होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होने की वजह से दे अटेन द हाईएस्ट स्पीड। मैगलेव ट्रेन टुडे कैन ट्रेवल अप टू 310 मीटर पर आवर, ट्वाइस द स्पीड ऑफ द एमट्रैक फास्टेस्ट कन्वेंशनल ट्रेन। तो ये एमट्रैक जो है ना ये क्या है, फास्टेस्ट कन्वेंशनल ट्रेन है। हेयर आई हैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैगलेव ट्रेन। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नज़र आ रहा है नीचे एक एनिमेटेड वीडियो है जिसमें यहाँ पर जो है एक कॉयल है जिसके अंदर आपने एक जो है मैग्नेट को रख दिया, और इट विल बी पुश्ड लाइक दिस, ये इस तरह से बाहर जो है फ़ौरन से ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन निकल के आ जाएगा। बिल्कुल जो मैगलेव ट्रेन है इसी तरह से ट्रैक के ऊपर मूव करती है विद दिस हाईएस्ट स्पीड। The last example of the electromagnetic induction is the falling magnet. You can see in this figure, the copper tube, as you can see, sees a changing magnetic field. उसको magnetic field नज़र आती है from the falling magnet. फॉल कर रहा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ करंट इन द कॉपर ट्यूब। जो कॉपर कॉयल आपको नज़र आ रही है कॉपर ट्यूब, उसके अंदर फील्ड चेंज होगी। द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉपर ट्यूब क्रिएट्स इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेज द मैग्नेटिक फील्ड दैट क्रिएटेड इट। तो ये क्या होता है, उसको अपोज करता है और कभी भी उसको गिरने नहीं देता, बल्कि क्या होता है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। देखिए नीचे की तरफ नहीं गिर पा रहा। This is a very good example of magnetic induction, that is the falling magnet. Hopefully you understand today's lecture. In the end, I have a home assignment for you. You have to learn the topics by heart. Practice the right hand rule by considering different examples. आपने examples जो है वो लेके अपने practical जो आपकी book के अंदर है उससे भी देख के, या आपने different situations को consider करके you have to practice the right hand rule. You have to practice Lenz's law with different examples, different applications, and in the end you will listen to the links given below to have a better अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल्स। या आपको कुछ यूट्यूब जो है लिंक्स गिवन है, इनको आपने ज़रूर खोलना है और देखना है, बिकॉज दे विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्टिकल, होपफुली इन 3 डायमेंशन। ओके गर्ल्स, होपफुली यू अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। हैव अ गुड टाइम एट होम। अल्लाह हाफिज़।